Namaste. A very good evening and a good morning to all our viewers. कुछ लोग सोच रहे होंगे ये गुड इवनिंग और गुड मॉर्निंग साथ में क्यों है? बस यही तो हमारे इस प्लेटफॉर्म की खूबसूरती है। कुछ लोग अपना दिन खत्म करते हुए हमसे जुड़ते हैं तो कुछ दिन की शुरुआत। आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है इंडिकैन फ्रेंडशिप क्लब की एक म्यूजिकल शाम के साथ। हर बार की तरह एक बार फिर से जानते हैं हमारे इस प्लेटफॉर्म के बारे में कि ये इंडिकैन फ्रेंडशिप क्लब है क्या एंड वी विल नो इट थ्रू अ स्मॉल इंट्रोडक्टरी वीडियो अबाउट आईसीएफसी। Mind the shared culture between India and Canada and formed the Indican Friendship Club. Chairman of Gold Soup Group Mr. Surendra Gupta ji and Director of Raksh Mr. Anmol Chawla ji joined hands and created an online platform to make the connection between the two countries more secure. Mr. Surendra Gupta ji is the chairman of Gold Soup Group, a corporate house of Delhi NCR. He is a renowned developer, builder, and financier working in various states of India. He is also the chairman of All India Agarwal Samaj, senior working president of International Vaish Federation, worked on key posts and very active in Rotary International, Rotary Club of Delhi Rajdhani, Agarwal Samaj, NGO Suniye, RWA Vasant Kunj Farms, Jai Narayan Godham, PhD Chamber of Commerce, and many more NGO, social, religious, and market associations. Mr. Anmol Chawla ji is the director of Raksh Management Private Limited, which is a 360-degree marketing and event planning firm. He is a young entrepreneur and has been an active leader of Rotary International for 8 years. He is also the trustee of organizations like Tobago and Divya Vardhan Charitable Trust. Indican Friendship Club is connecting people of India and Canada virtually to build friendship, exchange business, and also interact with one another. You can enter the virtual world of Indican Friendship Club through our website www.indicanfc.com. To become a member, you can visit our website and click on Join Us. Click on Create Account, enter all the details of authentication, create your own username and password, click on Sign In to proceed. Enter the login credentials that you created and click on Sign In again. You will enter the main lobby of our Indican world. You can explore our additional attractions on the website. You can promote your company or brand in the exhibition area where you will find our service providers very soon. You can avail their services by contacting them directly. In the clubhouse, you can play our uploaded games and have fun. There is a card exchange section created specially for you to share your business visiting cards to increase your visibility and let others know about your business. The most entertaining section will be the auditorium. You will be able to attend all our gala entertainment evenings in this auditorium. Big celebrities in renowned faces will be live here and you can enjoy listening to them. If you become our member, you will get all the updates about our upcoming entertainment nights the entire week. We have created this club with the purpose of uniting people and making the lives of the immigrants in Canada easier. We will also help the people in India to connect with the people in Canada who are willing to relocate. We also intend to do a cultural exchange that brings the people together, keeping them united. Let us join hands and come together on this platform.
तो ये था हमारा इनिशिएटिव इंडिकैन फ्रेंडशिप क्लब. We are trying our best to create this bridge between the people of India and Canada and give them this common platform. So, जो आज की ये शाम है इसमें काफी कुछ होने वाला है and I would be really grateful if you stay till with us till the end of this evening because एक बहुत ही प्यारी म्यूजिकल शाम आपका इंतजार कर रही है. अभी के लिए आगे बढ़ते हैं और थोड़ा और डिटेल में जानते हैं हमारे इस क्लब के बारे में, इसकी मेंबरशिप के बारे में और जानेंगे ये हमारी मैनेजमेंट टीम से. So we have been joined by the Secretary of Indican Friendship Club, Mr. Anmol Chawla, and I invite him to give us more insights about the club. Please put your hands together for Mr. Anmol Chawla. Thank you so much, Shreya, for the warm welcome. So, ICFC, it is indeed, I would say, a very fantasy word for us now because we are connecting the cultures of two countries, India and Canada, respectively. And having said that, I mean, when we say a club, yes, a club demands membership for its survival and for its sustainability, which is, I would say, the core element of any running organization across the globe. Currently, we are operational in India and Canada. And having said that, why we have opened this club is because we want to connect both the countries in a fashion wherein business networking, youth networking, and opportunities for foreign education, and of course, the musical frenzy evening that we are having today, and connecting many more artists across the country who are there coming from the heritage background or the youngsters that I mean we are hosting one today as well. All of them come onto a single platform to justify the need of music because that is a center that we're keeping for today. Currently we are not charging anything as when it comes to the membership, yes, but for the future run this Indican Friendship Club would have a paid membership because we always believe that we should pay for our own meals. That is very important to create the authenticity of organizations like Indican Friendship Club. It is very important that you shell out certain bit, not much of course, so that you actually take the best of benefits from the platform that we have created for you. So for now, if you want to become a member, you just need to put in your login credentials by creating your own account. I mean, basic credentials are there, so that can help you join the club. You'll be updated regularly with our updates. I mean, the weekly hosted events by our administration and management. And who can join us? Obviously, youngsters for events and stuff, business owners for promotions and to interact and to get into the lobby of the world of business. Also, we have a section on the website, as you just saw in the video, that we have exhibitors lounge as well by exhibition name, and you can exhibit yourself there, put up your stalls. The stalls are dynamic. You can do your own branding and promote to our membership that we have here. So members will be available to you during these sort of events. Of course, going forward, we'll be creating a much larger legacy through Indican Friendship Club by putting up shows every day. That is our try for the future run. And hence, the audience would be building up very soon. Obviously, we have a lot of participation already since we have been running the events for the last quarter now. Hence, this business opportunity is very vital for you, which we believe because it is obviously you can say global. So Canada is one of the gateways from India to the world. Also, there's a section wherein you can exchange your cards. You can put up your cards and you can refer to the individuals and the business people who have put their own visiting cards there for your pursual. So, indeed, it is a fantastic opportunity for all of you and for us as well because we
have certainly brainstormed quite a bit about how to make it more engaging day in and day out. And as you see, the auditorium as well, so it is just a basic virtual platform, but yes, it demands certain skill set that we have tried to put in the backend, and we'll be evolving this in the future. And you must have seen the Astro Talks by Miss Shweta. So she is one of our onboarded partners. Hence, she gets the opportunity to interact with our audience. So she obviously, indirectly, she's there for more leads for her astrology requirements. That's how we go. Also, going forward, obviously, we'll be branding this auditorium with the providers, with the service providers that we'll be taking on board. We'll be giving maybe sessions here, or maybe answering Q&As, or and so on. So that was all. Shreya, thank you so much. I guess this was an extension to our video that we just showed. So thank you so much. Looking forward to a great evening. Thank you so much for your words, sir. We are very certain that in the guidance of our management team, the club will be reaching greater heights for sure. And now it is time for the next segment, which is the birthday celebration. So हमारी बॉलीवुड इंडस्ट्री में बहुत सारे टैलेंटेड लोगों का कंट्रीब्यूशन है। तो आज इस शाम में हम दिखाना चाहेंगे कुछ बॉलीवुड सितारों की लाइफ जर्नी जिनका बर्थडे लास्ट वीक था, एंड उनका एक छोटा सा वीडियो कंपाइलेशन आईसीएफसी की तरफ से हम दिखाना चाहेंगे। ये दास्तां है एक ऐसे गायक की जिसने उम्मीद का दामन कभी ना छोड़ा और बना लिया वो मकाम जो किसी और कलाकार के लिए बनाना बड़ा ही कठिन है। नाम है इनका पंकज उधास। मैं दिल के दिल में रखता हूं, बस यही मेरा दोष है। पंकज उधास साहब का जन्म हुआ 17 मई सन 1951 में गुजरात के राजकोट इलाके के नजदीक एक जगह है जेतपुर। इनके पिता का नाम है केशुभाई उधास और माँ जीतूबेन उधास। यह भी बताया जाता है चूंकि ये जमींदार परिवार से थे तो इनके पिता का ताल्लुक खेती से था। ये जब बहुत छोटे ही थे तभी इनकी आवाज ने बता दिया था कि आगे जाकर ये गायक ही बनेंगे। सबसे मशहूर गजल गायकों में से एक माने जाते हैं। इनका गाया हुआ गाना ना कजरे की धार, जो कि फिल्म मोहरा का हिस्सा था, सुपरहिट साबित हुआ। साजन, ये दिल लगी, नाम, फिर तेरी कहानी याद आई, इन तमाम फिल्मों में पंकज उधास साहब के गानों ने सभी का मन मोह लिया। एक्ट्रेस अदिति गोवित्रिकर को इंडस्ट्री की सबसे खूबसूरत एक्ट्रेसेस में से एक माना जाता है। आज वो अपना 44वां बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं। इस मौके पर हम आपको बताते हैं उनकी जिंदगी से जुड़े दिलचस्प पहलू। अदिति गोवित्रिकर को इंडस्ट्री में ब्यूटी विद ब्रेन्स के तौर पर जाना जाता है। वो एक ऐसी एक्ट्रेस हैं जो बेहतरीन अदाकारा के साथ साथ एक डॉक्टर भी हैं। जी हाँ, यही वजह है कि उन्हें इस टाइटल के साथ भी पुकारा जाता है। अदिति गोवित्रिकर ने बॉलीवुड में कई फिल्मों में काम किया है। इन फिल्मों के बाद उनकी खूबसूरती के साथ साथ उनकी एक्टिंग को भी काफी सराहा गया। अदिति गोवित्रिकर का जन्म 21 मई 1976 को महाराष्ट्र के पनवेल में हुआ था। अदिति गोवित्रिकर पहली बार लाइमलाइट में तब आई थी जब उन्होंने 1996 में ग्लैड ड्रैग्स कॉन्टेस्ट जीता। इसके बाद तो उन्होंने कई मॉडलिंग टाइटल्स को अपने नाम किया। ग्लैड ड्रैग्स टाइटल के बाद अदिति गोवित्रिकर ने एशियन सुपर मॉडल कॉन्टेस्ट जीता। अदिति गोवित्रिकर ने मॉडलिंग के करियर में काफी कुछ हासिल किया। इसके बाद उन्होंने इंडस्ट्री के ऑफर भी आने लगे। पहले वो कई म्यूजिक वीडियोस और कई एड्स में नजर आई। अदिति गोवित्रिकर ने पूरी दुनिया में पहचान तब बनाई जब 2001 में उन्होंने मिसेस वर्ल्ड का खिताब अपने नाम किया। मिसेस वर्ल्ड जीतने वाली अदिति गोवित्रिकर भारत की तरफ से पहली और अभी तक की अकेली कंटेस्टेंट हैं। लिसन शंकर चौधरी, 5 रुपए की लॉटरी टिकट से भिखारी लाखपति हो जाता है, लेकिन बड़प्पन ब्लड में रहना जरूरी है, पीढ़ियों दर पीढ़ियों में होना चाहिए। ये दास्तां है एक ऐसे कलाकार की जिसे सही मायनों में स्कॉलर कहा जा सकता है। इन्होंने वो मकबूलियत हासिल की जिसका सपना बहुत से कलाकार देखते रह जाते हैं। नाम गिरीश कर्नाड। क्यों सर, और कितने दिन तक ये हार्ट अटैक का ड्रामा होने वाला है? पप्पी को थोड़ा बदलने तो दो। अजी, पप्पी बेटी तो काफी बदल गई है। जन्म हुआ 19 मई सन 1938 में। पूरा नाम गिरीश रघुनाथ कर्नाड। जन्म का स्थान था माथेरान। उस जमाने में यह बॉम्बे प्रेसिडेंसी में आता था और आज की तारीख में यह महाराष्ट्र राज्य का हिस्सा है। इनकी माँ कृष्णाबाई दरअसल बहुत ही कम उम्र में विधवा हो गई थी। उनका एक बेटा भी था। इनकी माँ ने
नर्स की ट्रेनिंग लेना शुरू ही किया था, जहां पे इनकी मुलाकात हुई डॉक्टर रघुनाथ कर्नाट से, जो कि बॉम्बे मेडिकल सर्विसेज में काम किया करते थे। क्योंकि ये वो जमाना था जब विधवा स्त्री का पुनर्विवाह बड़ा कठिन माना जाता था। साहब को पद्मश्री से नवाजा गया, पद्म भूषण से नवाजा गया, कन्नड़ा साहित्य परिषद अवार्ड से भी नवाजा गया और साथ ही सन 1994 में साहित्य अकादमी अवार्ड भी इन्हें दिया गया। इनकी अवार्ड्स की फहरिस्त वाकई बहुत लंबी है। लेकिन इन लोगों को कलम, स्याही, कागज के नीचे रखने को पैड सब चाहिए। मार्क्स तो हम लोगों से ज्यादा मिलते नहीं। अभी तो इन्हें बहुत काम करना था, लेकिन 10 जून सन 2019 में 81 साल की उम्र में इनकी मृत्यु हो गई। We have the star right here. He's known as the Prince of Pop. आप इनको पॉप स्टार, रॉक स्टार, एक्टर के तौर पे जानते हैं। जो सबसे इंटरेस्टिंग बात मुझे लगती है अली के केस की, वो ये है कि अली का स्टार्ट बहुत ही एक जिसे कहते हैं हम्बल बिगिनिंग थी। एक लड़का जो कि आप सबकी तरह कॉलेज में पढ़ते थे, उसके बाद एक ऐसा लड़का जो एक होटल के अंदर बैठ के पेंटिंग भी बनाता रहा और लोगों के स्केचेस बनाता रहा। मॉडलिंग से एक्टिंग तक का सफर, टीवी एक्टिंग की, टीवी एक्टिंग के बाद किसी को नहीं पता था और एक दिन एक गाना और एक वीडियो हमारे सामने आया, छन्नो, और उस गाने ने तहलका मचा दिया। अपनी पैशन फॉलो की। मैंने कहा यार मैं हूं कौन, मैं क्या करना चाहता हूं, मैं सबसे दिल के करीब मेरे क्या है, तो वो गाना था। मेरा ख्वाब था कि मैं एक दिन स्टेज पे अपना गाना गाऊं, किसी का नहीं, अपना गाना गाऊं तो लोग मेरा गाना मेरे साथ गा रहे हो, हजारों लोग। जब मैं दुनिया में आया था और जब मैं दुनिया से जाऊं तो मैं दुनिया को उस जगह से बेहतर छोड़ के जाऊं जैसे मुझे मिली। पर फेलियर से डर नहीं लगता है आपको? नहीं, डरने का फायदा नहीं है। एक्चुअली आप, मेरे ख्याल में आप फेल तब होते हैं जब आप फेल होके मेहनत करना छोड़ दें या दिल बर्दाश्ता हो जाए। फियर को अपने अंदर से निकाल दें, डर किसी किस्म का, और फिर खुल के सोचें, खुल के जिए और जिए। विक्की कौशल की सफलता की असली कहानी जानेंगे। दोस्तों, कहते हैं कि शुरुआत करने का कोई अच्छा वक्त नहीं होता, जहां से शुरू करो वहीं से तुम्हारा अच्छा वक्त शुरू हो जाता है। आज हम बात करने वाले हैं उस स्टार किड की जिसकी परवरिश एक स्टार किड जैसे बिल्कुल नहीं हुई थी, बल्कि शुरुआत से ही उन्हें जिंदगी की मुश्किल परिस्थितियों से लड़ना सिखाया गया था। विक्की कौशल के पिता बॉलीवुड जगत के जाने माने स्टंट डायरेक्टर और स्टंट कोऑर्डिनेटर हैं, जिन्होंने दंगल और बाजीराव मस्तानी जैसी बड़ी फिल्मों में काम करा है। उनके पिता ने बॉलीवुड में एक स्टंट मैन के तौर पर शुरुआत करी थी। विक्की ने अपने पिता को एक स्टंट मैन से स्टंट डायरेक्टर बनते हुए देखा है और देखा है कि एक इंसान को सफलता पाने के लिए कितनी मेहनत और कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। ये सब शुरू होता है 16 मई 1988 से, जब विक्की कौशल का जन्म मुंबई के एक 10x10 की चौल में हुआ था। विक्की एक पंजाबी परिवार में पैदा हुए थे। उनके पिता का नाम श्याम कौशल है और वहीं उनकी माँ का नाम है वीना कौशल। विक्की का एक छोटा भाई भी है जिसका नाम है सनी, और वो भी आज एक एक्टर है। विक्की शुरुआत से ही साथ गैंग्स ऑफ वासेपुर में असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर काम करा। इसी के बाद उन्होंने छोटे छोटे एक्टिंग रोल्स करने भी शुरू कर दिए। उन्होंने लव शफ्ते चिकन खुराना और बॉम्बे वेलवेट में छोटे छोटे रोल्स करे। इसके बाद उन्हें उनका पहला लीड रोल मिला 3 सालों के बाद 2015 की इंडिपेंडेंट फिल्म मसान में, जिसमें जिसने विक्की को देखा वो उनसे नजरें नहीं हटा सका। असली एक्टर की पहचान होती है कि वे कितना ज्यादा खुद को छुपाकर अपने किरदार को लोगों को दिखा सकता है, और विक्की ने अपनी पहली ही फिल्म से सबको ये बखूबी करके दिखा दिया था। पहली ही फिल्म से उन्हें अवार्ड्स मिलने भी शुरू हो गए थे। उन्हें बेस्ट मेल डेब्यू के लिए आईफा अवार्ड मिला। इस आदमी का स्टार बनना किसी चमत्कार से कम नहीं। इसमें टैलेंट कूट कूट के भरा था। बरसों संघर्ष करने के बाद स्टारडम हासिल किया। नाम नंबरदार नवाजुद्दीन सिद्दीकी, जिन्हें हम नवाज के नाम से भी पुकारते हैं। हम तो सोचे थे संजीव कुमार के घर में बच्चन पैदा हुए, लेकिन जब आंख खुली तो देखा साला हम तो शशि कपूर है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी का जन्म 19 मई सन 1974 में हुआ। ये उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले के बुढ़ाना कस्बे से ताल्लुक रखते हैं। इनका जन्म दरअसल एक जमींदार परिवार में हुआ था। बहुत से लोगों को यह गलत फहमी है कि ये गरीब परिवार से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन नहीं, ये अच्छे खासे खाते पीते परिवार से आए।
इनके नाम के आगे नंबरदार लगाया जाता था, पर बाद में इन्होंने नंबरदार हटा दिया। यह हरिद्वार के गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए गए, जहां से इन्होंने बीएससी की डिग्री ली, वो भी केमिस्ट्री में। उसके बाद ये बड़ौदा गए और वहां पर बतौर चीफ केमिस्ट काम करने लगे। इन्हें केमिस्ट के काम में मजा नहीं आ रहा था और बोर होकर ये आ गए दिल्ली। यहाँ पे किसी दोस्त के कहने पर इन्होंने मंडी हाउस में कुछ नाटक देखे और थिएटर देखने के बाद इन्होंने मन बना लिया कि मैं अब सिर्फ एक्टिंग ही करूंगा। एक थिएटर ग्रुप ज्वाइन किया, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के दाखिले की तैयारियां की और आगे जाकर वही हुआ जो इन्होंने प्लान किया था। इन्हें सिलेक्ट कर लिया गया नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के लिए। दुर्भाग्य से हिंदी थिएटर या किसी भी थिएटर में पैसा नहीं मिलता, इसलिए नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने अपने संघर्ष के दिनों में बतौर वॉचमैन काम किया। नोएडा की एक खिलौनों की फैक्ट्री में ये गेट कीपरी का काम करते थे और शाम के समय रिहर्सल्स। लेकिन करण जौहर जितना फेम पाने वाला कोई और डायरेक्टर है ही नहीं इंडस्ट्री में। हर प्लेटफॉर्म में, फिर चाहे टीवी हो, फिल्म्स हो या फिर वेब, करण जौहर हर जगह छाए हुए हैं। इन्होंने कई ऐसी रोमांटिक फिल्में इंडस्ट्री को दी है जिसे देखकर सबके दिल में कुछ कुछ होने लगता है। तो आज इस सुपर स्टाइलिश एंड एवरग्रीन रोमांटिक फिल्म मेकर करण जौहर के बारे में हम आपको बताते हैं कुछ अनसुने और अनजाने फैक्ट्स। करण जौहर का जन्म 25 मई 1972 को हुआ। फ्रेंच में मास्टर्स डिग्री रखते हैं करण जौहर। करण जौहर के पापा लेट यश जौहर चाहते थे कि करण एक एक्टर बने, जिसके लिए वो उन्हें लॉन्च करने के लिए भी रेडी थे। कुछ कुछ होता है फिल्म करण जौहर की डेब्यू डायरेक्टोरियल मूवी थी और इसी फिल्म से लव ट्रायंगल का सिलसिला करण ने शुरू किया। करण की दूसरी फिल्म कभी खुशी कभी गम वो पहली इंडियन मूवी है जिसकी मेकिंग पर एक बुक लिखी गई थी। फिल्म कुर्बान पहले करण जौहर डायरेक्ट करने वाले थे, लेकिन कभी खुशी कभी गम की शूट में बिजी होने के कारण करण को इस प्रोजेक्ट से हाथ धोना पड़ा। करण जौहर वो पहला इंडियन फिल्म मेकर है जिन्हें मिस वर्ल्ड कंपटीशन का जूरी मेंबर बनाया गया था। ये सितंबर 30, 2006 की बात है। ये कहानी है एक नन्हे कलाकार की जिसने बचपन में अपने अभिनय से हंसाया भी और रुलाया भी, और बड़े होने के बाद ये बना एक बड़ा ही पॉपुलर एक्टर भी। नाम कुणाल खेमू। जन्म 25 मई सन 1983 में हुआ। कुणाल खेमू के परिवार में ही एक्टर्स थे, पिता रवि और माँ ज्योति खेमू। ये दरअसल कश्मीरी पंडित हैं। कुणाल खेमू की पढ़ाई लिखाई की तरफ रुख करें तो पता चलता है कि मुंबई के निरंजन लाल दालमिया हाई स्कूल में इन्होंने पढ़ाई की। उसके बाद इन्होंने अपनी आगे की पढ़ाई की। कुणाल खेमू के पिता ने ही इन्हें एक्टिंग सिखाई, लेकिन ये बात कम लोग जानते हैं कि इनके दादाजी मोतीलाल खेमू दरअसल एक कश्मीरी नाटककार थे और जम्मू कश्मीर सरकार की तरफ से कई अवार्ड्स भी उन्हें दिए गए और फिर साहित्य अकादमी अवार्ड मिला सन 1982 में। कुणाल खेमू की शुरुआत हुई परीक्षित साहनी के सीरियल गुल गुलशन गुलफाम से। परीक्षित साहनी भी कश्मीर से ही ताल्लुक रखते हैं। ये सीरियल डायरेक्ट किया था वेद राही ने। उसके बाद महेश भट्ट की फिल्म सर में ये नजर आए, राजा हिंदुस्तानी, जख्म, हम है राही प्यार के, ये ऐसी फिल्में बनी जिन्होंने कुणाल खेमू को रातों रात स्टार बना दिया। अपने वक्त के ये सबसे व्यस्त चाइल्ड आर्टिस्ट थे। फिर सन 2005 में नजर आए मोहित सूरी की फिल्म कलयुग में। कलयुग की कहानी एक कंट्रोवर्सी पे आधारित थी। इस फिल्म के गाने पॉपुलर हुए और कुणाल खेमू के अभिनय को भी बहुत सराहा गया। फिर आई मधुर भंडारकर की फिल्म ट्रैफिक सिग्नल। कुणाल खेमू का कॉन्फिडेंस देखते ही बनता था इसमें भी। फिर आई ढोल, ढूंढते रह जाओगे, जय वीरू, गोलमाल, लेकिन बतौर सोलो हीरो कुणाल खेमू का सिक्का नहीं चला। गो गोआ गॉन, गुड्डू की गन, भाग जॉनी, इन्हें फिल्में तो मिलती रही पर बॉक्स ऑफिस पर वो सलामी नहीं। हिंदुस्तान के महान और बेहतरीन अभिनेताओं में से एक पंकज कपूर। पंकज कपूर साहब का जन्म 29 मई सन 1954 में हुआ। ये हिंदुस्तान के पंजाब प्रदेश के लुधियाना शहर के रहने वाले हैं। आइए जानते हैं कि कैसे ये इंजीनियर बन गया इतना बड़ा एक्टर।
पंकज कपूर साहब ने स्कूल और कॉलेज के दिनों में ही हल्की फुल्की एक्टिंग की शुरुआत कर दी थी। स्कूल के सालाना जलसों में ये एक्टिंग किया करते थे और धीरे धीरे इनका शौक कॉलेज में और भी मजबूत होता गया। ऐसे में इनके वालिद साहब ने इनकी मदद की। अमूमन ये होता है कि परिवार से मुखालफत होती है, पर पंकज कपूर साहब के साथ ऐसा नहीं हुआ। इनके वालिद खुद डबल MA थे और उन्होंने पंकज जी से कहा कि बेटा, क्या तुम फिल्म इंडस्ट्री की चकाचौंध की वजह से एक्टर बनना चाहते हो, या वाकई तुम में ये सलाहियत है कि तुम अभिनेता बनो? लिहाजा तुम विधिवत तरीके से ट्रेनिंग लेने की कोशिश करो और उस जगह जाओ जहाँ पर एक्टिंग सिखाई जाती है। सीरियस विलन। वाओ, आई मीन इतने डिफरेंट एज ग्रुप के सेलिब्रिटीज हैं एंड सबने अपने अपने समय पे बहुत अमेजिंग काम किया है एंड आई वुड लाइक टू विश ऑल ऑफ देम अ वेरी हैप्पी बर्थडे फ्रॉम द टीम ऑफ इंडिकैन फ्रेंडशिप क्लब. So now it is time for the most awaited segment of today, which was the musical evening. Today we have a very amazing singer with us and I'm sure हमारी ज़्यादातर audience आज सिर्फ उनको ही सुनने के लिए आई है. So I welcome Mr. Gaurav Kumar. Gaurav, firstly, I would like to ask you, how do you feel इस platform पे आके, किस तरह के songs आप गाने वाले हो? Can you just, tell something about yourself? There are a lot of questions. देखिए, सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूँगा कि ये प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा है और बहुत ही इवन मुझे बहुत इंटरेस्ट आया जब मैंने इसके बारे में सुना। तो इस एक सबसे पहले आर्टिस्ट के लिए कुछ लाइंस बोलना चाहता हूँ मैं कि परिंदों को मिलती है मंजिल यकीनन, ये फैले हुए उनके पर जानते हैं, खामोश रहते हैं वो लोग अक्सर ज़माने में जिनके हुनर बोलते हैं। तो मैं एक ही चीज़ हमेशा से कहते हैं ना कि एक आर्टिस्ट होता है ना, वो एक प्योर सोल। तो आई थिंक वो जो जब भी वो किसी किरदार के बारे में सोचता है, किसी सॉन्ग के बारे में सोचता है, तो उसके दिमाग में सबसे पहले प्यार वर्ड आता है। तो ये सॉन्ग जो भी मैं सॉन्ग्स आज आप लोगों को सुनाने वाला हूँ वो मोस्टली सारे लव सॉन्ग्स हैं, क्योंकि तो बहुत ज़्यादा पसंद है लव सॉन्ग्स, सॉफ्ट सॉन्ग्स, Yes, definitely. Gaurav, can you just give our audience a bit brief about yourself? आप किस तरह के shows करते हैं, कहाँ आपने shows किए हैं, आपने बैंड के बारे में, अपने बारे में कुछ और बता सकते हैं? बिल्कुल। देखिए, मोस्टली मेरा जो रहता है, हम लोग शोज़ करते रहते हैं और अक्सर हम लोग न्यूज़ चैनल्स में ज़्यादा शोज़ करते हैं और ओपन क्राउड शोज़ रहते हैं हम लोग के। तो ये शो करना, ये ज़रूरी नहीं हम कहाँ कर रहे हैं। हम हमेशा ये सोचना चाहिए कि अगर आपके पास, आप स्टेज पे परफॉर्म कर रहे हैं, ऑडियंस की काउंटिंग या फिर स्टेज लेवल मैंने कभी ज़िंदगी में गिना नहीं है, और मैं ये सोचता हूँ कि अगर आपके सामने एक भी कोई भी ऑडियंस आपको सुन रही है, वो एक शख्स भी आपके लिए ऑडियंस हज़ारों के बराबर होना चाहिए। आपको अपने टैलेंट से उसको रोकना, उसको फ्रीज करना आना चाहिए, ताकि वो आपकी आवाज़ में खो जाए, या फिर अगर आप डांसर है तो आपके डांस में खो जाए। मतलब आर्टिस्ट जो भी आर्ट दिखा रहा है, एक परफॉर्मेंस दे रहा है, तो कहने का मतलब है कि अगर आपके सामने एक ऑडियंस भी है तो वो कहीं जानी नहीं चाहिए। तो ये दम, ये जज्बा हर एक आर्टिस्ट में होना चाहिए। और सबसे पहले शुक्रिया अदा करूँगा मैं इंडिकैन का। तो ये प्लेटफॉर्म बहुत ही अच्छा लगा मुझको, जैसा कि मैंने अभी आपसे जिक्र किया। बिल्कुल। Thank you so much, and I think this is some really amazing thought about your performance as an artist. So really good to hear about it. Firstly, so आपका first song क्या होने वाला है? आपका opening song क्या रहेगा आज? जैसा कि मैंने अभी बताया कि मुझे लव सॉन्ग्स बहुत पसंद है, तो पहला सॉन्ग भी होना चाहिए। मैं लेकिन रेट्रो पे जाऊंगा पहला, क्योंकि ये सॉन्ग सभी के दिल के बेहद करीब है। तो सॉन्ग है चुरा लिया है तुमने जो दिल को, नजर नहीं चुराना सनम, बदल के मेरी तुम जिंदगानी, कहीं बदल ना जाना सनम। हो ले लिया है मेरा दिल, आज दिल लेकर मुझको ना बहलाना। चुरा लिया है तुमने जो दिल को, नजर नहीं चुराना सनम।
जब देखता हूँ तुझे आए चेहरे पे मुस्कान, क्यों कर दी हराम तूने नींदे ए जान, सिर्फ जीने के लिए पड़े तेरी जरूरत, क्यों रब दिखाई पड़े तेरी ये सूरत, तेरा आंखें नीचे करके हल्का सा शर्माना, जिद दिल ने पकड़ ली साथ तेरे घर बसाना, चुप चुप के नजरें मिलाना, अपनी हंसी को मुझसे चुराना, भूलने से पहले दूंगा आंखें बीच, चल दिल में बन गई जान कितनी अजीज, भीड़ में भी तुझे पहचान लेता हूँ, कैसे खुली आंखों से रातें गुजार लेता हूँ, समझाना चाहूँ अपने जज्बात, मुझसे अल्फाज न निकले जब करने लगूं बात, कैसे कर बाहों में बना ले दो गुलाम, जिसने तुझे बनाया उस रब को है सलाम। बाहर बन के आऊं कभी तुम्हारी दुनिया में, गुजरना चाहिए दिन कहीं इसी तमन्ना में, बाहर बन के आऊं कभी तुम्हारी दुनिया में, गुजरना चाहिए दिन कहीं इसी तमन्ना में, तुम मेरे हो, तुम मेरे हो, आज फिर इतना वादा करके जाना, चुरा लिया है तुमने जो दिल को, नजर नहीं चुराना सनम, बदल के मेरी तुम जिंदगानी, कहीं बदल ना जाना सनम। थैंक यू। वाओ, आई थिंक मतलब जितने भी रोमांटिक सॉन्ग्स के लवर्स होंगे ना, दे मस्ट बी सिंगिंग अलोंग जस्ट लाइक मी, बिकॉज मैं भी आप गा रहे थे, मैं बैकग्राउंड में मेरी लिप सिंग चल रही थी, बिकॉज लाइक वेरी नाइस ओपनिंग सॉन्ग। थैंक यू सो मच, थैंक यू श्रेया। So what will the next song be? ओके, तो एक मोटिवेशनल सॉन्ग मैं डेडिकेट करना चाहता हूँ हर एक शख्स को, ज़रूरी नहीं है वो आर्टिस्ट हो, किसी भी फील्ड से रिलेट करता हो, जब तक हमारे अंदर वो कहते हैं वो जुनून, वो जज्बा ना हो, तो वो कोई भी शख्स हो, चाहे वो एक बिजनेसमैन हो या फिर कोई आर्टिस्ट हो, तो वो आगे बढ़ने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो एक सॉन्ग, कुछ पाने की हो आसास, कोई अरमा हो जो खास खास आशा है, हर कोशिश में हो बार बार करे दरियाओं को आर पार आशा है, तूफानों को चिर दे, मंजिलों को छीन ले, आशा है खिले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी, आशा है खिले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी। ले जाए लेके खुशी अपने संग तुझको वहाँ, जन्नत से मुलाकात हो, पूरी हो तेरी हर दुआ, आशा है खिले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी, आशा है खिले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी। It was indeed very energetic and motivational. So like Gaurav, is this your go-to song? Like what is that one song जो आप कई बार गाना पसंद करते हो या सुनना पसंद करते हो when you want to feel motivated? ओके, एक सॉन्ग एवरग्रीन, ये सभी को बहुत पसंद आएगा, क्योंकि मैंने नोटिस किया है कि मैं एज अ आर्टिस्ट नहीं कह सकता, मगर अगर मैं कहीं और भी जाता हूँ कोई स्टेज लेवल स्टेज शोज देखने, तो ये सॉन्ग तो ज़रूर आता है, जो कि मेरा भी फेवरेट है। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया,
संभालो मुझको ओ मेरे यारो, संभलना मुश्किल हो गया। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया। संभालो मुझको ओ मेरे यारो, संभलना मुश्किल हो गया। दिल में मेरे ख्वाब तेरे, तस्वीर जैसे हो दीवार पे। तुझ पे फिदा मैं क्यों हुआ, आता है गुस्सा मुझे प्यार पे। मैं लुट गया मान के दिल का कहा, मैं कहीं का ना रहा। क्या करूं मैं दिलबा, बुरा ये जादू तेरी आंखों का, ये मेरा कातिल हो गया। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी। वैसे मैंने गुलाबी आंखें कभी देखी नहीं किसी की लेकिन ये सॉन्ग मुझे बहुत पसंद है। Really nice. I think ये इसके जितने भी न्यू रीमिक्स बनते रहते हैं, but the original one always stays the best. डेफिनेटली। So what would be the next song, Gaurav? ओके ये सॉन्ग भी मेरे दिल के बेहद करीब है, क्योंकि ये सॉन्ग ये जब मूवी आई थी तब मुझे मैं बहुत ज़्यादा ऋतिक रोशन सर का फ़ैन हो गया था। हो दिल वालों, दिल मेरा सुनने को बेकरार है। कहो ना प्यार है, कहो ना प्यार है। हो दिल वालों, दिल मेरा सुनने को बेकरार है। कहो ना प्यार है, कहो ना प्यार है। हो चाहत से हम तुम हैं, चाहत से संसार है। कहो ना प्यार है, कहो ना प्यार है। कहो ना प्यार है, कहो ना प्यार है। Well, 90s वाले सॉन्ग कभी पुराने नहीं होते। आई थिंक आप कभी भी सुन लो, दे आर लाइक ऑलवेज दे फील लाइक फ्रेश। बिल्कुल बिल्कुल, ये कभी पुराने हो भी नहीं सकते। और आपने नोटिस किया होगा कि जो भी अब नए सॉन्ग्स आ रहे हैं तो वो रिमिक करके आ रहे हैं, क्योंकि उस टाइम के सॉन्ग्स की जो लिरिक्स होती थी उसके पीछे ना एक बहुत बड़ा कहते हैं ना वो लिरिक्स बेहद दिल को छू लेने वाली होती थी, एक फील होता था। और आप किसी भी सॉन्ग्स को ले लीजिए, चाहे वो लव सॉन्ग हो या फिर वो कोई डिवोशनल सॉन्ग्स हो। जो रफ़ी साहब के पुराने सॉन्ग्स हैं काफ़ी सारे, तो उनमें से भी वो जो लिरिक्स होती थी वो रूह को छूती थी। तो वो आज भी मुझे बहुत पसंद है, और हर शख्स की ज़ुबान पे आज भी वो सारे सॉन्ग्स ऐसे रटे हुए हैं जैसे कि आजकल के सॉन्ग्स हो। ट्रू ट्रू ट्रू। सो मैं बस एक क्वेश्चन छोटा सा गौरव आपसे पूछना चाहूंगी, बिकॉज वाइल वी वर ऑर्गेनाइजिंग एंटायर थिंग एंड आपके पूरा प्रमोशंस एंड ऑल चल रहे थे, सो आई नोटिस्ड हर जगह यू हैड वॉइस ऑफ दिल्ली रिटन। सो आई जस्ट वांटेड टू नो द स्टोरी अबाउट व्हाट गौरव कुमार द वॉइस ऑफ दिल्ली इज, हाउ दैट केम अक्रॉस एंड व्हाट्स द स्टोरी बिहाइंड इट। देखिए स्टोरी मैं इतना एक छोटा सा शब्द कहूँगा। मेरी फैमिली, मेरे पेरेंट्स, वो मेरी स्टोरी हैं, और मैं जो भी हूँ अभी उन्हीं की वजह से हूँ। वो कैसे हूँ, क्यों हूँ, मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि मेरे मम्मा पापा, मेरे बड़े भाई और मेरी पूरी फैमिली ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। तो मुझे लोगों ने टैग दिया, तो वो टैग हमेशा मैं बरकरार रखना चाहता हूँ। इवन और भी ज़्यादा लोगों को एंटरटेन करने के लिए हमेशा आप लोगों के बीच में यूँ ही गाना गाता रहूँगा और आप लोगों को
दिल से एंटरटेन करूँगा, ताकि आगे चल के वॉइस ऑफ दिल्ली, वॉइस ऑफ इंडिया जल्दी से बन जाए, और इसके लिए कड़ी मेहनत है, वो कभी कम नहीं होने देंगे। बिल्कुल, आई थिंक जिस हिसाब से बिकॉज़ मैंने आपके फॉलोअर्स का जितना भी आपकी जो ऑडियंस है इंस्टाग्राम पे, आई थिंक दे शो अ लॉट ऑफ लव टू व्हाटएवर यू डू एंड यू हैव बीन वेरी एक्टिव, सो आई एम श्योर वो वॉइस ऑफ दिल्ली, वॉइस ऑफ इंडिया ज़रूर एंड जल्दी बनेगा। Thank you So so much. now let's move ahead to the next song. What would be the next song? ओके, तो अभी ओल्ड रेट्रो सॉन्ग्स की बात हो रही थी, तो एक पुराना गाना ही आप लोगों के बीच में रखना चाहता हूँ मैं। दर्द दिल, दर्द जिगर, दिल में जगाया आपने। दर्द दिल, दर्द जिगर, दिल में जगाया आपने। पहले तो मैं शायर था, आशिक बनाया आपने। दर्द दिल, दर्द जिगर, दिल में जगाया आपने। आपकी मदहोश नजरें कर रही है शायरी, आपकी मदहोश नजरें कर रही है शायरी। ये गजल मेरी नहीं, ये गजल है आपकी। मैंने तो बस वो लिखा जो कुछ लिखाया आपने। दर्द दिल, दर्द जिगर, दिल में जगाया आपने। दर्द दिल, दर्द जिगर, दिल में जगाया आपने। तो अगली लाइन स्पेशली ये लाइव को सुनती हर ऑडियंस के लिए। और थोड़ी देर में बस हम जुदा हो जाएंगे, और थोड़ी देर में बस हम जुदा हो जाएंगे। आपको ढूंढूंगा कैसे, रास्ते खो जाएंगे। आगे आगे आप लोग गा सकते हैं मेरे साथ। नाम तक भी तो नहीं अपना बताया आपने। दर्द दिल, दर्द जिगर, दिल में जगाया आपने। दर्द दिल, दर्द जिगर, दिल में जगाया आपने। थैंक यू सो मच, थैंक यू। बिल्कुल एनर्जी आ गई है, एनर्जी चेंज हो गई है एकदम ये गाना सुन के, और इट वाज रियली रियली अमेजिंग। ओके, नेक्स्ट एक छोटी सी डिमांड मैं अपनी तरफ से रखूं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बताइए बताइए। I will not name a specific song, but I would really want कि 90s का कोई एक और रोमांटिक एंड लव सॉन्ग आप गाओ। ओके, कितना इसको समझाता हूँ, कितना इसको बहलाता हूँ, कितना इसको समझाता हूँ, कितना इसको बहलाता हूँ। नादान है कुछ ना समझता है, दिन रात ये आहें भरता है। मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार जो तुमसे करता है। मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार जो तुमसे करता है।
सी इसीलिए मैंने कोई स्पेसिफिक सॉन्ग नहीं बताया था, बिकॉज वो एक वो रिस्ट्रिक्शन रह जाती है, जो सॉन्ग्स मैंने सुने हैं या जो सॉन्ग्स मुझे याद आ रहे हैं मैं वही गाऊं, बिकॉज ये सॉन्ग तो डेफिनेटली मुझे याद नहीं आता, एंड इट वाज बहुत टाइम बाद सुना मैंने ये सॉन्ग। आई लव दिस सॉन्ग। साजन मूवी के सॉन्ग्स तो सीरियसली बहुत अमेजिंग सॉन्ग्स है, और काफ़ी सारे ऐसे ओल्ड सॉन्ग्स हैं। मैं एक्चुअली मैं आर डी बर्मन साहब के बहुत सॉन्ग्स गाता था बचपन में, जब भी कोई लाइव होता था या फिर हम कभी स्टेज शो करते थे बचपन में, मेरे डैड मुझे लेके जाते थे ऑडिशंस के लिए, तो मैं आर डी बर्मन सर के सॉन्ग्स या रफ़ी सर के सॉन्ग्स ही चूज़ करता था, क्योंकि आर डी बर्मन सर के सॉन्ग्स बहुत प्यारे प्यारे हैं ऐसे, जो कि मुझे बेहद दिल के करीब है और बहुत पसंद भी है। वेल मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन यही होने वाला था गौरव कि आपका फेवरेट सिंगर कौन है, एंड जो भी है उनका कोई एक फेवरेट सॉन्ग आप जरूर गाइए। सबसे पहली चीज़ मैं एक चीज़ मानता हूँ कि मेरा फेवरेट, मैं नहीं मानता कि मैं किसी को कोई भी फेवरेट, क्योंकि सभी अपने मुकाम पे बहुत ऊपर है और सबने बहुत मेहनत की है, स्ट्रगल की है, तब जाके वो आगे बढ़े हैं। तो मेरे लिए सभी फेवरेट है, लेकिन हाँ कुछ सॉन्ग्स ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा चूजी है मेरे, जिनमें से एक सॉन्ग है हम आपके कौन मूवी का। 2 लाइन सुनाना चाहूँगा मैं आपको। मेरे तसव्वुर में तुम रोज आती हो, चुपके से तुम आकर मेरा सर दबाती हो। हो सजनी बड़ा प्यारा ये रूप है तेरा, गजरे की खुशबू से महका है घर मेरा। आँखों से अब तेरी काजल चुराना है, पल भर की जुदाई फिर लौट आना है। साथिया संग रहेगा तेरा प्यार, साथिया रंग लाएगा इंतजार। बिल्कुल वैसे ही जैसे हम डिस्कस कर रहे थे 90s के सॉन्ग के लिरिक्स, द वर्डिंग्स, द मीनिंग, एवरीथिंग इज ऑन पॉइंट। सीरियसली मैंने इनको, अगर हमने काफ़ी टाइम से, वैसे तो ट्रैक लिस्ट में हमेशा रहता है रेडी, रोज़ रात में मैं सुन के सोता हूँ, लेकिन सॉन्ग्स जहन में घुस चुके हैं तो लिरिक्स को भूलने का वैसे मतलब नहीं है। True. Okay, Gaurav, just एक last demand since we are moving towards the closing of our event now. I just want to mention, since ये जो हमारा Indican Friendship Club है, the name itself has friendship, and friendship हम सबके लिए बहुत different मीन करती है, बट हाँ हमारे इस प्लेटफॉर्म पे हमारा जो मोटिव रहा है इंडिया और कनाडा के लोगों के बीच की फ्रेंडशिप को डेवलप करना, ब्रिज करना, तो जो सभी लोग आज हमारे साथ जुड़े हैं, मैं जरूर चाहूंगी कि एक फ्रेंडशिप का सॉन्ग आप उन सबके लिए गाओ, बिकॉज कहीं ना कहीं वो एक कॉमन फीलिंग, एक कॉमन ज़ील है सबके बीच में। तो वन सॉन्ग फॉर फ्रेंडशिप। ओके, फ्रेंडशिप के लिए बहुत सारे ऐसे सॉन्ग्स हैं, तो हम चूज कर सकते हैं। आई थिंक एक सॉन्ग है, बहुत प्यारा सॉन्ग है वो भी। मेरी जिंदगी सवारी मुझको गले लगाकर बैठा दिया पलक पे, मुझे खाक से उठाकर। मेरी जिंदगी सवारी मुझको गले लगाकर बैठा दिया पलक पर, मुझे खाक से उठाकर। यारा तेरी यारी को मैंने तो खुदा माना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना। मेरे दिल की ये दुआ है कभी दूर तू न जाए, तुझसे शुरू हो जीना वो दिन कभी ना आए। मेरे दिल की ये दुआ है कभी दूर तू न जाए, मुझे बिना हो जीना वो दिन कभी ना आए। यारा तेरी यारी को मैंने तो खुदा माना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा
अफसाना। Wow, I think this was the evergreen most sung friendship song, and almost हर कोई emotional हो जाता है ये song सुन के कहीं ना कहीं. So thank you so much, Gaurav, for being here with us. I literally enjoyed each and every song that you've sung. And now that we have reached the end of this evening, I would like to thank everybody for joining us and staying with us till the end of this evening. And we really hope that you had a great time and will enjoy, you enjoyed this evening, and you will join us again for another fun-filled evening. So if you want to join us for more of our events, make sure you visit our website www.indicanfc.com. And मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि कनाडा वालों को सबको दिल से मेरा बेहद दिल से प्यार, और इंडिकैन की पूरी टीम की तरफ से बहुत 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 दिल से हमेशा हम लोग आपके लिए यूं ही एंटरटेन करते रहेंगे और हमेशा आप लोगों को ऐसे ही खुश रखेंगे, ये हमारा वादा है। Thank you so much for your warm wishes, Gaurav, and we are certain we will have you again for yet another fun-filled evening. And if you all want to get all the updates about our event that we will be scheduling in upcoming months, you will have to log into our website www.indicanfc.com. Just have to create your account and you will get all the updates about our events and engagements. So thank you so much, Gaurav. Thank you so much to all our viewers for joining us today. And मिलते हैं अगली बार. Thank you so much.